السلام علیکم، لاہور نیوز کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ علی امین گنڈا پور بار بار لاہور آئیں مگر پنجاب کے امن و امان پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی 90 دن کی تحریک ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی میڈیا سے گفتگو، مزید کہا کہ پورا خاندان سیلاب میں بہہ گیا مگر کے پی حکومت کچھ نہ کر سکی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہلے اپنے صوبے پر توجہ دیں۔ علی امین گنڈا پور پر اپنے صوبے میں امن و امان کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کے پی میں چیف منسٹر صاحب پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے اور دوسری جو حکومتی کمزوریاں ہیں، لیکن آپ کے سامنے پورا خاندان پنجاب کا وہاں سیلاب میں بہہ گیا اور ایمانداری کی بات ہے، کوئی میں تنقید یا وہ نہیں کر رہا، لیکن وہاں پہ جو ان کا لواحقین میں سے 2-3 لوگ بچے تھے جو اس دریا میں اندر نہیں تھے، باہر ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ 1122 کی جو گاڑی آئی ہے، خدا گواہ ہے صرف ان کے پاس رسی تھی، باقی اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پہ ان لوگوں کو بچا سکتے۔ تو کے پی چیف منسٹر صاحب پہ بھی اور پوری گورنمنٹ پہ بھی سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے ان چیزوں کو دیکھیں۔ بیچارے عوام جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے بڑی مشکل صورتحال میں ہے، اور اداروں کی اگر صورتحال یہ ہوگی تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا 5 اگست کو احتجاج کا معاملہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے دورہ لاہور کے بعد معاملہ بگڑ گیا۔ پی ٹی آئی ورکرز 90 دن اور 5 اگست کی ڈیڈ لائن میں تذبذب کا شکار۔ تحریک انصاف کے پارلیمانی عہدیداران اور پارٹی عہدیداران 2 دھڑوں میں تقسیم۔ تنظیمی عہدیداران کا 90 دن بعد سیاست چھوڑنے کی ڈیڈ لائن سے لا علمی کا اظہار۔ حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے حمزہ۔ سامہ دیکھیں، تحریک انصاف کے 5 اگست کو احتجاج کا یہ معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے دورہ لاہور کے بعد معاملہ مزید بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ورکرز 90 دن اور 5 اگست کی ڈیڈ لائن میں تذبذب کا شکار ہیں، جبکہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورے لاہور کے بعد تحریک انصاف کے پارلیمانی عہدیدار اور پارٹی عہدیدار جو ہیں وہ 2 دھڑوں میں بڑھ چکے ہیں، جبکہ تنظیمی عہدیداروں کا پارلیمانی عہدیداروں کی جانب سے 90 دن بعد سیاست چھوڑنے کی ڈیڈ لائن سے لا علمی کا اظہار ہے، جبکہ علی امین گنڈا پور، عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر 90 دن کے بعد سیاست چھوڑنے کی ڈیڈ لائن پر ایک پیش بنائے، جبکہ اس کے علاوہ جو پارٹی عہدیدار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر صرف 5 اگست کو فیصلہ کریں گے کہ تحریک کس طریقے سے چلانی ہے۔ اس کے علاوہ جو 90 دن کا ڈیڈ لائن جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے دی گئی اس کو نہیں مانتے، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو پارٹی عہدیدار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہی جو حکم دیں گے اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے گا، نہ کہ جو از خود اعلان کیے جا رہے ہیں اس پر دیا جائے گا۔ جبکہ اس بات پر چیف منسٹر پنجاب عالیہ حمزہ کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم ایک ہی شخص کو حکم مانتے ہیں اور وہ بانی پی ٹی آئی ہیں، جبکہ پنجاب میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو پی ٹی آئی کے احتجاجی تحریک اور پارلیمانی پارٹی کے رہنما کون رہنما لیڈ کرے گا اس پر بھی تنظیمی رہنما تاحال فیصلہ نہیں کر سکے، جبکہ تحریک انصاف پنجاب کے صدر تاحال روپوش ہیں، اس پر بھی ورکرز نے شکوہ کیا ہے، جبکہ 5 اگست کی تحریک کو پیک پر کیسے لے کر جانا ہے، سینئر پارٹی قیادت کی جانب سے کوئی بھی لایا عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا۔ اور اس کے علاوہ چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ ابھی بھی تنظیمی اجلاسوں میں جو ہے مصروف نظر آتی ہیں، جبکہ 5 اگست کی تحریک کو جو ہے وہ کس طریقے سے موبلائز کرنا ہے اس کا ابھی تک کوئی لایا عمل دیکھنے میں سامنے نہیں آ رہا۔ جی آپ کا شکریہ حمزہ۔ ناکے پر وارڈنز کو باڈی کیمرے لگائے جانے کا سلسلہ جاری۔ سٹی آف لاہور نے مزید 200 ٹریفک وارڈنز کو باڈی کیمرے لگا دیے ہیں۔ اب تک 400 وارڈنز کو باڈی کیم لگائے جا چکے۔ سٹی آف لاہور کا کہنا ہے کہ باڈی کیمرے لگانے کا مقصد ڈیوٹی کے دوران چالان کے مکمل ثبوت رکھنا ہے۔ ٹریفک وارڈنز کو باڈی کیمرے لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سٹی آف لاہور نے مزید 200 ٹریفک وارڈنز کو باڈی کیم لگا دیے ہیں، جبکہ اب تک 400 وارڈنز کو باڈی کیم لگائے جا چکے ہیں۔ سٹی آف لاہور کا کہنا ہے کہ باڈی کیمرے لگانے کا مقصد ڈیوٹی کے دوران چالان کے مکمل ثبوت رکھنا ہے اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سی ٹی او کی جانب سے ٹریفک وارڈنز کو باڈی کیم لگائے جا رہے ہیں۔ باڈی کیم لگانے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سٹی لاہور نے مزید 200 ٹریفک وارڈنز کو باڈی کیم لگا دیے۔ اب تک 400 وارڈنز کو باڈی کیم لگائے جا چکے۔ سٹی لاہور کا کہنا ہے کہ باڈی کیمرے لگانے کا مقصد ڈیوٹی کے دوران چالان کے مکمل ثبوت رکھنا ہے۔ اس حوالے سے مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے اکثر یہ شکوہ کیا جاتا تھا کہ ٹریفک وارڈنز کی جانب سے بدتمیزی کی جاتی ہے، لیکن اب اس حوالے سے سٹی آف لاہور نے باڈی کیمز لگا دیے ہیں۔
स्पीकर पंजाब असम्बली निजी दौरे पर बैरून मुल्क रवाना। मलिक अहमद खान 20 दिन के लिए लंदन रवाना हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली 20 दिन मुख्तलिफ ममालिक में क़याम करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन का तीसरा मुज़ाकराती सेशन जल्द मुतवक्के। स्पीकर पंजाब असम्बली बज़रिया वीडियो लिंक मुज़ाकराती सेशन में शिरकत करेंगे। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते, बताइए हमजा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान 20 दिन के निजी दौरे पर लंदन रवाना हो चुके हैं। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो 20 दिन के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली मुख्तलिफ ममालिक में स्टे करेंगे। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली 20 दिन के लिए जो है निजी दौरे पर लंदन रवाना हुए हैं। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इसी के दौरान जो हुकूमती और अपोजिशन 26 अरकान मुअत्तल हैं, उनके जो मुज़ाकरात के सेशन जारी हैं वो ऐसे ही जारी रहेंगे। जबकि तीसरा सेशन जो कि अपोजिशन और हुकूमत का होना है वो जल्द मुतवक्के है। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान बजरिया वीडियो लिंक इजलासों की सदारत करेंगे। जबकि इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ को कायम मुकाम स्पीकर का कलमदान सौंप दिया गया है। और इसी सिलसिले में अब से 20 दिन बाद जो है स्पीकर पंजाब असम्बली वापस वतन वापस आएंगे। लेकिन इसके दौरान जो मुज़ाकराती सेशन है वो नहीं रुकेंगे। जबकि ज़राए का कहना है कि स्पीकर पंजाब असम्बली की खसूसी हिदायत हैं कि वो बजरिया वीडियो लिंक जो है वो इसकी सदारत भी करेंगे। जी, आपका शुक्रिया हमजा। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की अपने हल्के में खुली कचहरी। मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के चेयरमैन, हल्का अमायदीन और अवाम के मसाइल सुने। बिलाल यासीन का कहना था कि मुल्क की तरक्की में अपोजिशन जमातों को भी साथ लेकर चलने के लिए दरवाजे खुले हैं। अपोजिशन रहनुमा भी तहजीब और रवायात का ख्याल रखें। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने अपने इंतखाबी हल्के में खुली कचहरी लगाई, जिसमें मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के चेयरमैन, हल्का अमायदीन और अवाम के मसाइल सुने। इस मौका पर वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की तरफ से ये कहा गया कि मुल्क की तरक्की में अपोजिशन जमातों को भी साथ लेकर चलने के लिए दरवाजे खुले हैं। अपोजिशन बेंचों वाले मेंबरान भी तहजीब और रिवायात का ख्याल रखें। अवामी नुमाइंदों को सियासत के साथ साथ बाहमी एहतराम और कानून की पासदारी करना भी लाजिम है। इस मौका पर बिलाल यासीन की तरफ से हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से इस खुली कचहरी में बताया गया कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम समेत तमाम प्रोग्राम सियासी वाबस्तगी से बालातर और शफाफियत की बेहतरी की मिसालें हैं। मुस्बत पॉलिसियों के बायस बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख रोज बरोज बेहतर हो रही है। ताहम मुआशी इशारियों में बेहतरी मुल्क को दिवालिया करवाने वालों से हजम नहीं हो रही। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत अवाम की खिदमत और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। आपका शुक्रिया ज़ैन। शहर के पोश इलाके समनाबाद में भी गैस नायाब। 8 रोज से गैस की बंदिश के बायस मुकीनों को मुश्किलात का सामना। हुक्काम को दरख्वास्त देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं। उसामा, बताइए। देखिए, इस वक्त मैं समनाबाद के इलाके गजाली रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़श्ता 8 दिनों से गैस का मसला बना हुआ है। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और यहाँ पर जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि गुज़श्ता 8 दिनों से गैस आई ही नहीं है, जिस वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पर लोग डेफिनेटली गैस जो है वो घरों में खाना पकाने के लिए यूज़ होती है। लेकिन आज शहरी बदस्तूर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गैस कब आए और कब उनका खाना बने। इसी तरह लोग यहाँ पे सरापा एहतजाज भी हैं। कुछ शहरी, कुछ मोहल्लेदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि कितने दिनों से मसला बना हुआ है और मुकम्मल तौर पर गैस आई नहीं थी? 10 से 12 दिन से ये गैस का मसला है और गैस की सप्लाई ज़ीरो है। और ये यहाँ पे जो महकमे की मुख्तलिफ टीमें आती हैं वो सर्वे करके चली जाती हैं, लेकिन नतीजा उसका बिल्कुल सिफर है। और उनको ये कुछ समझ नहीं आ रही कि जहाँ पे डिफेक्ट है उसको प्रॉपरली डिटेक्ट करके उसको जो है ठीक करें। तो ये सारा मसला हमारे घरों में जी सिलेंडर से जो है वो गैस जो है 1500 से 2000 रुपया रोज़ाना का गैस का खर्चा सिलेंडर के ज़रिए से जा रहा है। तो महकमाने से दरख्वास्त है कि हम दर्दाना तौर पे हमारे इशू को जो है ना वो एड्रेस करें। अच्छा, आप बताइएगा कि अभी तक किसी से कोई रिक्वेस्ट की है, किसी इदारे में शिकायत की है आपने? मैं तकरीबन रोज़ाना जिस दिन से गैस बंद है, इनका जो 119 नंबर है उसके ऊपर इसकी कंप्लेन कर रहे हैं। बस वक्ती तौर पर वो ज़ुबानी बता देते हैं, किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, कि कोई बंदा नहीं आया। बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी हैं उनका कहना है कि शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता 8 से 10 रोज़ से गैस बिल्कुल नहीं आ रही। जो भी मसला है लेकिन उसको हल नहीं किया जा रहा। बार बार इदारे को शिकायत भी की है लेकिन अभी तक तहाल इस मसले को हल नहीं किया जा सका और यहाँ पर शहरियों को बदस्तूर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये रिहायशी इलाका भी है और यहाँ पर लोगों को घरों में खाना पकाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से मुसलसल दिन ब दिन
महंगाई भी बढ़ रही है, तो कहते हैं कि जो सिलेंडर की गैस है वो बहुत महंगी पड़ती है। तो इसी तरह उनकी बार बार गवर्नमेंट से और इंतजामिया से यही इल्तिजा है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए और गैस की जो लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हुआ है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। जी, आपका शुक्रिया उसामा। शादबाग के इलाके तारिक शहीद रोड पर गंदे नाले की दीवार जगह जगह से टूट गई। नाले के अंदर कूड़े क्रिकेट की भरमार से ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। जैन अली से मजीद जानते, बताइए जैन। जी बिल्कुल, शादबाग की तारिक शहीद रोड जिसके साथ साथ एक गंदा नाला गुजरता है और हाल ही में होने वाली मानसून की बारिशों के बायस नाले के इर्द गिर्द जो बन बनाए गए थे बारिशों के बायस वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। मुख्तलिफ मुकामात से जो है वो इस नाले के जो बन हैं, जो दीवारें हैं वो टूट गई हैं, जिसके साथ साथ जो सड़क है वो भी जो है इस बारिशी पानी के बायस बहकर इस नाले में गिर रही है। अगर मेरा कैमरामैन बाबर आपको दिखा सके तो गंदगी भी जो है वो बेइंतहा यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ ये जो दीवार है, यहाँ पे पहले दीवार होती थी जो मुकम्मल तौर पर टूटकर जो है वो इस नाले में गिर चुकी है। दरख्त भी जो है यहाँ पर गिरा हुआ है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जहाँ पर जो है वो कोई काम जो है वो नहीं किया जा रहा। अमल दरामद जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। शहरियों की इस हवाले से जो इलाका मकीन है उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, आप बताइएगा ये कितनी मरतबा ये दीवार जो है वो यहाँ पर टूट चुकी है और कोई शिकायत दर्ज करवाई आपने, क्या किया? 20 मरतबा गिर चुकी है। बनाते हैं ये जो दीवार अब गिरी है, ये चंद दिन अब 3-4 माह पहले उन्होंने तमीर की है, वो भी साथ गिर गई है। सफाई का ये आलम है, 1 महीना हो गया इसमें सफाई कुछ नहीं हुई अभी तक। हम कहते हैं कि रेगुलर इसकी सफाई करें, वो मशीन खड़ी करके उसको अंदर डाल देते हैं, बाद अफसर गुजरते हैं, वो देखते हैं काम हो रहा है, 1 ट्रक 2 भरे और छुट्टी खत्म छुट। सर, आप बताइएगा अब तक कितना जो है वो नुकसान कोई गिर चुका है, कोई नुकसान ऐसा हो चुका है? पहले भी यहाँ से एक औरत की लाश निकाली गई है, फिर बच्चे भी खेलते खुलते जा रहे, इधर महल्ला है, बच्चे हैं गिर जाते हैं। कूड़े का ट्रक एक दिन गिरा हुआ था इसके अंदर, तो ये देखते ही कुछ नहीं है। बाज़ का ये रात को भी आए तो कभी लाइट ना हो तो फिर भी ये खौफ होता है कहीं गिर ना जाए इसके अंदर। तो ये इसका ये होना चाहिए कि इसको बिल्कुल मुकम्मल ऊपर से बंद होना चाहिए, ये सफाई होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। हमारा ये मुतालबा है। ये देखें गली मोहल्ले का क्या हाल क्या है, आपने खुद ही देखा ये कितना गंद है, कोई आता ही नहीं है, देखता ही नहीं कुछ भी। रात को बिल्कुल जो इलाका मकीन है वो शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बारहा शिकायत की है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर ये बन बार बार बनाया भी जाता है, लेकिन शायद नाकिस जो मटीरियल इस्तेमाल होता है जिसके बायस ये जो दीवार है वो बारिश, थोड़ी सी बारिश के बाद ही जो है दोबारा गिर जाती है। और अब तक कई हादसा जो है वो रूनुमा हो चुके हैं, ख़वातीन भी यहाँ पर गिरती रही हैं और बच्चे भी जो है वो यहाँ पर गिरते रहे हैं, लेकिन वक्ती तौर पर काम तो कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी मुस्तकिल हल जो है वो नहीं निकाला जा सका। आपका शुक्रिया जैन। सूबाई दारुल-हुकूमत में मानसून का स्पेल जारी। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। एबट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, एम्प्रेस रोड, गड़ी शाहू में तेज़ बारिश। टाउनशिप, जोहर टाउन, मॉडल टाउन और जबकि फिरोजपुर रोड, शाहदरा समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। सामिया सईद से मज़ीद जान लेते हैं, बताइए सामिया। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। मानसून सीजन जो है वो अपने जलवे दिखा रहा है और आज वक्फे वक्फे से शहर लाहौर में बारिश बरसती रही है और अभी भी ये देखा जा रहा है कि शहर का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। हवाएं भी बाहर महसूस हो रही हैं। आज सुबह सवेरे से जो हब्स और गर्मी की जो शिद्दत है उसमें नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हब्स और गर्मी की जो है वो छुट्टी हो गई है, क्योंकि शहर लाहौर में मुसलसल हवाएं चल रही हैं। ताहाल महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और शहर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर बादल बरस रहे हैं। अगर बात की जाए तो ताहाल भी, आमिर टाउन और इकबाल टाउन, इसके साथ ही साथ जेल रोड, माल रोड, एबिट रोड पर जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद शहर का मौसम जो है वो हसीन हो चुका है। लाहौरिये भी जो है घरों से बाहर निकल के मौसम को जो है वो खूब एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर शहरियों को यह कहा जा रहा है कि मौसम को जरूर एंजॉय करें, मगर साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल करना मत भूलें, क्योंकि मानसून का सीजन है और आइंदा कई दिनों तक जो है बताया ये जा रहा है कि 17 जुलाई तक जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। तो अपने हमरा छतरी जरूर रखें, क्योंकि बारिश जो है वो किसी भी लम्हे शहर लाहौर में बरस सकती है। ताहाल भी जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है
कि जो बारिश है ये 17 जुलाई तक बरकरार रहेगी। मानसून का तीसरा स्पेल जारी है। अलबत्ता अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहाल भी शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अलबत्ता वासा की टीमों को भी यही कहा जा रहा है कि तमाम तर टीमें जो है वो मुतहर्रिक रहें क्योंकि शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। तो ताहम पानी की निकासियाब का जो अमल है उसे जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। तमाम जनरेटर्स को जो है वो स्टैंड बाई रखा जाए। तमाम अंडरपासेस को जो है वो फौरी तौर पर क्लियर करवाया जाए ताकि शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और खास तौर पर ट्रैफिक का जो निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है ये भी ना होने दें। तो अलबत्ता ये तमाम तरह एहतियाती तदाबीर भी जारी की गई हैं। शहरियों को ये कहा जा रहा है कि पैदल चलने वाले अफराद बिजली की तनसीबात से दूरी इख्तियार करें और बच्चों को जो है वो जमाशुदा पानी के करीब हरगिज ना जाने दें। अपने हमरा छतरी लाजमी रखें क्योंकि अब शहर लाहौर का मौसम आइंदा चंद रोज तक बेहतर ही रिकॉर्ड किया जाएगा और 2 से 3 रोज तक हम यही देखेंगे कि शहर लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो वक्फे से बारिश जारी रहेगी। जी सामने ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है लेकिन अक्सर देखा गया है लाहौरियों के लिए बारान रहमत जहमत बन जाता है। इस वक्त रोड्स की क्या सूरत हाल है, किन किन इलाकों में पानी जमा है जिसे नहीं निकाला गया? आज बिल्कुल उसामा अगर बात की जाए तो सुबह सवेरे से ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में जो है वो वक्फे से बारिश बरसती है लेकिन बारिश का दौरानिया जो है वो बहुत कम रिकॉर्ड किया जाता है। 10 मिनट की बारिश हो गई, 20 मिनट की बारिश हो गई। अगर शहर लाहौर में मुसलसल बारिश होती है तो ये देखा जाएगा कि शहर के जो इलाके हैं मुतअद्दिद इलाके हैं जिसमें हरबंसपुरा का इलाका हो गया, आमिर टाउन का इलाका हो गया, ये ज़ेरे आप आ सकते हैं। अलबत्ता ताहाल तो शहर में इतनी बारिश नहीं हुई कि सड़कों पर पानी खड़ा हो जाए क्योंकि वक्फे से बारिश हो रही है। कभी हल्की हो जाती है तो कभी तेज हो जाती है, दौरानिया भी कम है। मगर जिस तरह के बादल आसमान पर आए हुए हैं वो यही बता रहे हैं कि शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। तो इसके पेश नज़र जो है वो इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों भी एक शहर लाहौर में बारिश हुई थी तो ये देखा गया था कि मुसलसल घंटों बारिश होती रही जिसके बारिश जो है वो शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। तो ताहम हर बार की तरह इस बार भी जो है वो अलर्ट तो जारी कर दिया गया है। अब ये उम्मीद ही की जा सकती है कि तमाम तर टीमें जो हैं वो वाकई फील्ड में मुतहर्रिक रहें, पानी की निकासियाब का जो अमल है उसे जल्द से जल्द यकीनी बनाए ताकि जो है वो बहराने रहमत शहरियों के लिए रहमत ही बने, जहमत ना बने। आपका शुक्रिया सामिया। वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सरकारी हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग के लिए सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड कायम। 3 सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जल्द काम शुरू कर देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की सरकारी हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 24 घंटे में एक्शन की हिदायत। मरीम नवाज़ ने हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स की दस्तियाबी पर मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली। ब्यूरो चीफ हसन रजा से मज़ीद जानते हैं। हसन, बताइए इस बारे। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल्स में मॉनिटरिंग के लिए सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड कायम करने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदार जाम इजलास हुआ जिसमें सरकारी अस्पतालों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट 24 घंटे में एक्शन करने की हदायत की है। इसी तरह जो है 3 सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जल्द जो है वो काम शुरू कर देंगे और सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर, बजट, अकाउंट ऑफिसर, डाटा एक्सपर्ट और दीगर शामिल हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की सर्विलेंस टीम के लिए जामिया चेकलिस्ट तैयार करने की हदायत की है। विजिलेंस स्क्वाड में अस्पतालों में मेडिसिन, ड्यूटी रोस्टर, क्लिनिकल सर्विसेज, बायोमेडिकल आलात और दीगर अमूर चेक करेगा। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के जेर तमाम खुसूसी डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग कायम करने की भी मंजूरी दे दी गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग में जिला, तहसील, अस्पतालों में मराकज़ सेहत के लिए अलग अलग यूनिट कायम होंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग में सर्विलेंस रूम जो है वो 24 घंटे काम करेगा। पंजाब के अस्पतालों में गैस्ट्रोनोलॉजी सर्विस शुरू करने का भी फैसला किया गया है। सर्विस हॉस्पिटल में गैस्ट्रोनोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। तहसील और डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की अपग्रेडेशन और ट्रॉमा सेंटर कायम करने का भी फैसला किया है। फैसल मसूद टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा में खुसूसी ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। गुजरावाला के टीचिंग अस्पताल में कार्डियोलॉजी वार्ड कायम होगा। मुल्तान के कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में 4 ऑपरेशन थिएटर जदीद तिब्बी आलात के साथ फंक्शनल किए जाएंगे। BS डिग्री हासिल करने वाले नर्सिस को सरकारी अस्पताल में मुआवजा इंटर्नशिप मिलेगी। अस्पताल में फ्री मेडिसिन अनाउंसमेंट मुसलसल जारी रखने की हदायत की है। पंजाब के 8 अजला में
अस्पतालों में कैथ लैब कायम करने की भी मंजूरी दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैथ लैब में प्रोसीजर शुरू करने के लिए दिसंबर की डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी गई है। जी, आपका शुक्रिया हसन। वासा लाहौर ने शहर में 2 मुकामात पर ऑटोमेटिक रेन गेज नस्ब कर दिए। लाहौर में नस्ब ऑटोमेटिक रेन गेज के साथ लेवल सेंसर भी इंस्टॉल कर दिए गए। वासा मुल्क की पहली वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी बन गई जिसने यह खुदकार निज़ाम लगाया। पंजाब में पहली बार बारिश का खुदकार पैमाने से मापने का फैसला। ऑटोमेटिक रेन गेज से बरवक्त और हकीकत के करीब तरीन डाटा हासिल किया जा सकेगा। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। ये वासा लाहौर की तरफ से शहर में 2 मुकामात पर जो ऑटोमेटिक रेन गेज हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि लाहौर में नस्ब ऑटोमेटिक रेन गेज के साथ लेवल सेंसर भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। वासा मुल्क की पहली वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी बन गई है जिसने ये खुदकार निज़ाम लगाया है और पंजाब में पहली बार बारिश को खुदकार पैमाने से मापने का फैसला किया है। इसी तनाजुर में ऑटोमेटिक रेन गेज से बरवक्त और हकीकत के करीब तरीन जो डाटा है वो हासिल किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की हदायत पर तमाम वासा एजेंसीज को ये निज़ाम इस्तेमाल करने के अहकाम जारी किए गए हैं और डीजी वासा पंजाब को 7 दिन के अंदर रेन गेज नस्ब करने के अहकाम जारी किए हैं और इसी तनाजुर में तमाम वासा एजेंसियों को 7 दिन के अंदर अमल दरामद पर की पाबंदी का मरासला भी जारी कर दिया गया है। इस खुदकार निज़ाम से बारिश की शिद्दत और दुरानिये का रियल टाइम डाटा दस्तियाब होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से मानसून बारिशों के दौरान फौरी और दुरुस्त रद्द अमल मुमकिन हो सकेगा। पंजाब की सतह पर वासा लाहौर ने सबसे पहले अमली तौर पर ये निज़ाम नाफज किया है। ऑटोमेटिक रेन गेज के जरिए डाटा इकट्ठा करना जदीद सिस्टम की तरफ एक बड़ा कदम होगा। आपका शुक्रिया ज़ैन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की मुतल्लिका अमले को फौरी नकासियाब यकीनी बनाने की हिदायत। वासा LDA MCL और CBD की खसूसी टीमें मुतहरिक रखी जाएंगी। आपको बता रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की मुतल्लिका अमले को फौरी नकासियाब यकीनी बनाने की हिदायत। वासा LDA MCL और CBD की खसूसी टीमें मुतहरिक रखी जाएंगी। खसूसी टीमों को मुतहरिक रखा जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश है। जबकि आपको ये भी बताएं कि PDMA की जानिब से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है और इस हवाले से वासा और LWMC की टीमों को मुतहरिक रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश है और इस हवाले से PDMA ने भी अलर्ट जारी किया है। PDMA के अलर्ट के मुताबिक शहर में अर्बन फ्लडिंग के खदशात हैं और इस हवाले से LWMC को नकासियाब यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज़्यादा पानी वाला तालाब में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलबर्ग में 8, लक्ष्मी चौक 7, एयरपोर्ट पर 7.5, जेल रोड पर 7.4 मिलीमीटर बारिश हुई। करतबा चौक में 6, गुलशनावी 3, समनाबाद में 1.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। मेरे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। ये बारिश का स्पेल 28 जून से लाहौर में दाखिल हुआ और गुज़िश्ता 17 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ दुरानिये में ये बारिश होती रही। आज के दिन शहर में बारिश का दूसरा स्पेल बरस रहा है। इस दौरान जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के अदादोशुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक जेल रोड पर 9.4, एयरपोर्ट पर 7.5, जबकि गुलबर्ग के इलाकों में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 7, अपर माल में 1, मुगलपुरा में 4 मिलीमीटर, जबकि ताजपुरा और निस्तर टाउन में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शुमाली लाहौर के इलाका चौक नाखुदा में 8 मिलीमीटर, अंदरून शहर के इलाका पानी वाला तालाब में 8, फरखाबाद और शादरा के इलाकों में 3, गुलशन रावी में भी 3, अलामा इकबाल टाउन में 6, समनाबाद में 6.5, जौहर टाउन में 1 मिलीमीटर, जबकि कुर्तबा चौक में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस तरह शहर लाहौर में औसतन 4.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताहम आज होने वाली बारिश के बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से वासा हुकाम को अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें शहर की तमाम मरकजी शाहराओं और अंडर पासिस को क्लियर रखने की हिदायत जारी की गई है, जबकि बिजली के बंदिश वाले इलाकों में डिस्पोजल स्टेशंस को जनरेटर्स पर चलाने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। बर वक्त बारिशी पानी के निकास के लिए तमाम डिस्पोजल स्टेशन के पंप्स को ऑपरेशनल रखने और स्क्रीनों को साफ रखने की हिदायत भी जारी की गई हैं। आपका शुक्रिया ज़ैन।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का नश्तर टाउन का दौरा। CEO हेल्थ ने डिप्टी कमिश्नर को डेंगू की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ज़ेर तमीर इमारत में लार्वा की मौजूदगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई है। लार्वा के हवाले से आपको बताएं कि आखिरी वार्निंग जारी की गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का नश्तर टाउन का दौरा। इस हवाले से ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बारिशों के दौरान लार्वे की अफजाइश के हवाले से इकदाम जारी हैं, क्योंकि डेंगू मच्छर बारिशों के बाद पैदा हो जाता है और इस हवाले से महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की जाती हैं। और इसी हवाले से सैयद मूसा रज़ा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ मौजूद पानी में लार्वा की मौजूदगी के हवाले से चेकिंग की जा रही है। जबकि नश्तर टाउन में एक इमारत में लार्वा की मौजूदगी पाई गई और जिस पर DC सैयद मूसा रज़ा की जानिब से सख्त इजहार नाराज़गी भी किया गया और आखिरी वार्निंग भी जारी कर दी गई है। ये मनाजर आप देख सकते हैं कि सैयद मूसा रज़ा इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, पानी की चेकिंग की जा रही है और इस हवाले से आवाम को भी चाहिए कि घरों में पानी खड़ा ना होने दें, क्योंकि खड़े पानी में लार्वे की अफजाइश के इम्कानात ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। आपको ये बता रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से इक़दामात कर रही है।